کہ اندر جو بندہ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے وہ میرا بھائی ہے، بیٹی بن ہے. کیا مجھے ان سے اکیلے میں مل سکتا ہوں؟ آپ کیسے دینا بھیجتے ہیں الاؤ ہوتا ہے؟ آپ صرف میرا کہیے، میں ادھر ہی ہوں شہریار. نہیں، میں نے نام لکھ کے بھیجنا، میں خود تو جانا نہیں ہے کہ بھائی کو میں آپ کو ابھی جانا چاہتا ہوں. ایک دو جو بندے زیادہ نہیں، ایک دو بندے. میں کسی کے پاس پیج پہ ہے وزٹنگ کارڈ ہے، وزٹنگ کارڈ وزٹنگ کارڈ کوئی چیز دے دیں. وزٹنگ کارڈ لے لیں. بھائی آپ مولوی آپ کی اجازت لکھ سکتا ہوں؟ یہ بیٹا میں سائڈ پہ ویٹ کر رہا ہوں. سائڈ پہ Your approach, your commitment is exemplary. We are so very proud to have such, mashallah, We have supporters around the world. سر آپ بھی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، سر آپ بھی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، پر آپ کے دور میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا جو آج ہو رہا ہے. تھوڑا سا سمائیں. شہریار صاحب اس سوال کو ایڈ کر لیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کی جاتی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ کے ہوتے ہوئے ان سے 20 کلو منشیات برآمد ہوئی. آج سیم اسی طرح کا کیس ہے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ المولانا العظیم. تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب کی. شکر ہے اس ذات کا جو تمام جہانوں کا خالق مالک رازق ہے، ایک ایسا رب جو تمام عزتوں کا، بڑائی کا، طاقت کا، ہر چیز کا محور رب ہے. اور رب نے اپنے محبوب کو چنا اور ہم الحمدللہ رب کے محبوب کی امتی ہیں. یہ اللہ کا احسان عظیم ہے ہم پہ. اور پھر یہ دھرتی ماں جس کی نسبت کلمہ حق سے، لا الہ الا اللہ سے ہے. اور یہ ملک 27ویں رمضان کو بنا. اس ملک کے بننے کا مین مقصد کیا تھا؟ اس ملک کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ مسجد، مدرسہ، امام بارگاہ، خانقاہ، گرجا، مندر، گردوارہ، ہر بزرگ، ہر ماں، ہر بیٹے، ہر بچی، ہر سوچ، ہر فکر، تمام پاکستانی اکائیوں کو، تمام قوموں کو، سوچوں کو آزادی ہوگی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق زندگی گزارنے کی. ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ملک دو قومی نظریے پہ جو بنا تھا، یہ بنا تھا اس لیے کہ ہم آزادی سے کلمہ حق کے لیے آواز اٹھا سکیں اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، جو یہ فلسفہ حسین ہے. میرے پاکستانیوں، آج حال کیا بنا دیا اس پاکستان کا؟ جو شخص اقتدار میں رہے، جو ایم پی، منسٹر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ یا کوئی بڑے عہدے پہ وزیر اعلیٰ بن جائے یا جرنل بن جائے یا کوئی بڑے عہدے پہ چلا جائے، وہ قانون سے بالاتر ہے. بھائی اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. وہ لوٹ مار کرے، وہ قتل عام کرے، وہ ہیروئن بیچے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. وہ نسل کشی کرے، قوم کی بیٹیوں کے منہ میں گولیاں مارے، وہ لوگوں کی تذلیل کرے، قوم کی بیٹی کی زبان نکال کے اسے کہے چاٹو یہ جوتے، قوم کے بچوں کے ساتھ کھلے عام جبر ہو. ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کیونکہ ان کی عزت اور ان کا جھوٹ اور ان کا فریب اور ان کی منافقت، کیونکہ پیسہ پھینک کے لوگوں کو خریدنا بیڑ بکریوں کی طرح جو بھی ریجیم چینج میں ہوا ہے، یہ وہ سوچ ہے. اور میرے پاکستانیوں، قانون بنا کس کے لیے؟ جاؤ تھانوں میں، غریب آدمی اس سے سک رہا ہے، جیلوں میں غریب آدمی ہے، عزت کا جنازہ غریب کا نکل رہا ہے، بھوک اور پیاس غریب. جاؤ کسی سے پوچھو کہ 2 وقت کی روٹی کیا ہوتی ہے.
कानून उसके लिए है, वो जलील भी होगा, वो रुसवा भी होगा, उसकी पकड़ भी होगी, उसकी दकड़ भी होगी, उसको पता भी नहीं है मेरा गुनाह क्या है। लेकिन हम कहते हैं फलस्तीन में जुल्म हो रहा है और यहूदी इजराइल कर रहा है, हम कहते हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है और हिंदू कर रहा है, हिंदुस्तान कर रहा है। तो हम तो सारे अल्लाह और अल्लाह के महबूब के मानने वाले हैं। सर मुझे बताइएगा कि एक मिनट जी, मैं अपनी बात कर लूँ ना मेरा भाई। ये प्लीज प्लीज जाइए। देखिए, सिर्फ खिताब कर रहे हैं, काम उसको करें। तो आप चले जाएं, मजबूरी होती आप है। चले जाएं, मजबूरी आप होती है। चले जाएं, सर, मजबूरी आप चले जाएं, मजबूरी होती है, सर, आप चले जाएं मेरा भाई, आप इंटरप्ट ना करें प्लीज। आप अपने चैनल के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए गुफ्तगू करने दें यार, गुफ्तगू क्या करने कर रहे हैं आप? गुफ्तगू के बाद ठीक गुफ्तगू है। करने दें यार। ये वो गुफ्तगू मेरे- से कुछ सीख रहे हैं हम। मेरे पाकिस्तानियों, आज रेटिंग का जमाना है कि मुझे कुछ लाइक्स मिल जाएं और मेरी इज्जत में इजाफा हो, तो ये सब देने वाला रब है। बेशक बेशक इज्जतें रब के पास हैं, बेशक। इज्जतें ना दुनिया के पास है, ना दुनियादारी में है, ना ओहदे में, ना रुतबे में, ना माल में है। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि मेरे भाई कानून किसके लिए है? आम आदमी के लिए। तो अब सवाल ये है कि मैं क्यों आया हूं यहाँ पे पिम्स? कल भी आया था, आज भी आया हूं। शहबाज गिल फैसलाबाद का एक जट फैमिली का आम घर का बच्चा, पीएचडी कर गया बेचारा, पीएचडी कर गया, और उसने सोचा कि अमेरिका के बजाय मैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कौम की इज्जत और नामूस, जो 65% पाकिस्तानी है, जो जिस 35 साल से कम उम्र के जवान हैं, और ये मुल्क जिसमें 50% सतह गुर्बत से लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग तकसीम हुए हैं, शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, सिंधी, बलोची, पठान, PPTI, PMLN, JUI, जमात इस्लामी, ये जो तकसीम दर तकसीम है, यहाँ जाऊँ और खान साहब के साथ खड़े होके इस मुल्क को एक ऐसी कौम बनाएं कि इसमें सिर्फ इंसाफ, इखलाक, किरदार, हया, गैरत और नामूस ये अवलीन तरजीह हो। उसके लिए उन्होंने खान साहब का साथ शुरू किया, और वो लोग जो 4 दफ़ा हुकूमतों में रहे, अब भी जिनकी हुकूमत है घुसपैठियों की, इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या क्या नहीं कहा। इनकी PDM के तमाम लीडरशिप ने फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या क्या नहीं कहा, लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है। वो ब्लैकमेल करें, वो एक चैनल 1 घंटा सर्विंग DGISI को, आर्मी चीफ को क्या क्या नहीं कहा गया। यहां तक कहा गया कि इजराइल के पेरोल पे जर्नल्स हैं, क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। और वो कौन है आज? वो मोतबर हैं, उनकी इज्जतें हैं। और एक शख्स जो इस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर है, 15 किलो हेरोइन शहरियार अफरीदी ने अरेस्ट नहीं किया था, उसको इमरान खान ने अरेस्ट नहीं किया था। आर्मी डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिसका मेजर जनरल हेड, उसके 5 RDs हैं, रीजनल डायरेक्टरेट्स, ब्रिगेडियर्स हैं, उन्होंने उसको अरेस्ट किया, उनका पर्चा उन्होंने काटा, अरेस्ट उन्होंने किया, लीगल कार्रवाई वो कर रहे हैं। जवाब शहरियार अफरीदी से पूछा जा रहा है। तो मुझे और खान साहब को, पार्लियामेंट को, मिनिस्टर को, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस को, कैबिनेट को जो सबूत मिलते थे, जो हमें ANF बताती थी, हम आगे बताते थे। तो आज इस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर, और मैं आज एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुमोटो एक्शन तो लें, पता तो करें। 17 दिन, CNS लॉ क्या कहता है? 17 दिन तक तमाम सबूत अदालत में हो और 18वें दिन ट्रायल शुरू हो। गरीब आदमी होता तो उसका ट्रायल हो चुका होता, इसका ट्रायल नहीं हो रहा। जिस तरह इस घुसपैठिए वजीर आजम ने स्टाम्प पेपर गारंटर बना था नवाज शरीफ का, उससे कोई पता पूछने वाला नहीं। उसके बैंक अकाउंट में उसके बच्चों के पैसे आए, अरबों रुपए आए, पापड़ वाला, रेडी वाला, उससे कोई पूछने वाला नहीं। जो गलजियात बकी, जो अल्फाज फौज के बारे में और इस मुल्क के बारे में कहे गए, हिंदुस्तान कहते हमने इस पे इन्वेस्टमेंट किया, नवाज शरीफ इस कोई बात नहीं करता। और इस बंदे ने अगर कोई गलत काम किया, शहबाज गिल ने, तो कानून के तहत केस चलाएं, साबित हो जाए तो फांसी दे दें। लेकिन ये कौन सा तरीका है इज्जत नफ्स मजरू करने का? इस्लामी मुल्क में उसकी शर्मगाहों का, उसका जनाजा हया का निकालना, ये हम अपनी नस्लों को क्या बता रहे हैं? वो बंदा जिसने एक कौम की बेटी को, डॉक्टर को कहा कि जूते चाटो, उसका एक फौरन बेल हो जाता है। जो कौम के बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं उनके बेल हो जाते हैं, उनके लिए कोई सजा नहीं है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज मेरा सवाल है,
डॉक्टर्स कहते हैं कि जी उसके अंदर जिस्म के टिश्यूज सेंसिटिव एरियाज के उसकी बुरी हालत है। तो आज हम एक क्या नई नस्ल को क्या बता रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही होगी। और फौज से हमें लड़ाया जा रहा है, फौज तो हमारा ईमान है। इमरान खान कहता है मेरा चेयरमैन जिसके लिए मेरा सब कुछ कुर्बान, कि मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत फौज की है। ओ जायलो, ओ मुनाफको, ओ बदबख्तो, मुकाबला मैदान में नहीं कर सकते। PMLN वालों, पीपल्स पार्टी JUI वालों मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। PDM के ना अहलो मुकाबला मैदान में नहीं कर सकते। अब ये काम रह गया कि हमें लड़ाया जाए। हम नहीं लड़ेंगे इंशाल्लाह। हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हारी सियासत का जनाजा निकालेंगे इंशाल्लाह। जो कौम को तुम लोग 4,700 अरब का तुम लोगों ने कर्जा ले लिया अभी इन कुछ महीनों में, इमरान खान ने तो सिर्फ 700 अरब का लिया था। तो आज मैं पूरी कौम को बताना चाह रहा हूं, हम कानून और आइन के आगे सर तस्लीम खम है।